Yes, very charming. Good morning to everyone. Yes, hope you all are fine and ready for your class. Okay, good. Okay, so let's start with our topic. So we have discussed in our topic ruling the countryside that how the company started collecting taxes when it became Diwan of Bengal, Bihar and Odisha. It started collecting Diwani from there. And it was interested only in revenue part. It was not interested in developing the agriculture or the development of people. It was interested in its own profit only. It has also devised some methods of collecting revenue. Earlier it was not interested in any method also, but later on इसने कुछ methods develop कर दिए. Then it focus on some crops, because land revenue, where it will get land revenue from the crops only. And then it also focus some crops which were needed in Europe. So which crops were needed in Europe? Many type of crops, okay, such as indigo, opium. Then later on it also focused on the cultivation of rice, okay, tea. And then there is the next point, that color of history. So first we will focus in this chapter only on indigo cultivation. Okay, so earlier the company, it insisted on the production of many crops, but in this chapter we will discuss about the indigo, that why there was demand of Indian indigo, why Indian indigo, how it was cultivated, and later on why people rebel against the planters if they will not grow indigo. So what was this all story about, कि इंडिगो की डिमांड कैसे स्टार्ट हुई, लोगों ने इंडिगो ग्रो कैसे किया, और फिर बाद में इंडिगो को उन्होंने ग्रो करना बंद भी कर दिया. ठीक है, उन्होंने रिबेलियन, उसके अगेंस्ट वो रिवोल्ट कर दी. कंपनी के जो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट कर दी कि वो ग्रो नहीं करेंगे. तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस. So firstly, ki colors, indigo, this color, it has a history, because indigo color is used in India also, indigo color is used in other countries also. And when we have discussed in Europe, there was industrialization, and when there was industrialization, the cloth was being prepared in industries, and for that making cloth, they were demanding that blue color, the rich blue color, that was in more demand. And there was also, it was not like this कि यूरोप में ब्लू कलर नहीं होता था. ठीक है, इंडिया में तो होता ही था, जो इंडिया की इंडिगो है वहां पे भी ब्लू कलर मिलता था. तो ये नहीं कि यूरोप में ब्लू कलर नहीं मिलता था, देयर वाज आल्सो ब्लू कलर, and the blue color that was found there, so that was the production of their wood की production होती थी वहां पे. So yes, तो यूरोप में वोड की VOAD, ये वोड की प्रोडक्शन होती थी. ठीक है, इंडिया में इंडिगो की होती थी. तो ये दोनों ही जो थे वो ब्लू कलर देते थे, लेकिन जो इंडिगो का कलर होता था वो बहुत ही रिच कलर होता था, और इसका जो ब्लू कलर आता था वो पेल और डल कलर आता था. यस, क्लियर? ओके आरुष. तो ये भी ब्लू और कलर तो दोनों ही ब्लू थे. ठीक है, तो जो यूरोप में भी ये ब्लू कलर आता था. जैसे हमने बात की कि कल भी हमने बात की थी कि इंडिगो कलर इंडिया में ज्यादा क्यों होता था, क्योंकि इंडिया में ज्यादा जो रीजन है ट्रॉपिक रीजन है. तो जो इंडिगो की प्रोडक्शन है वो सिर्फ ट्रॉपिक रीजन में ही हो सकती है. ठीक है, और जो वुड की प्रोडक्शन ये टेम्परेट रीजन में होती है. तो आई होप कि ये ट्रॉपिक टेम्परेट रीजन आपको क्लियर है. ठीक है, जैसे कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास यहाँ पे 23 डिग्री तक ये सारा ट्रॉपिक रीजन है ना.
ये ट्रॉपिक रीजन है और उसके ऊपर 66.5 डिग्री ये जो रीजन है ये आपका टेम्परेट रीजन है। ठीक है, तो इस टेम्परेट रीजन में जो प्रोडक्शन होती थी वो होती थी वुड की। तो उसका जो कलर होता था वो कलर होता था पेल एंड डल कलर, और जो इसका कलर होता था वो रिच ब्लू कलर होता था, बहुत फाइन अच्छा लगता था कलर, तो इसलिए इसकी डिमांड थी। एक तो ये रीजन था। तो ये कलर की हिस्ट्री भी इस तरह से, कलर की हिस्ट्री भी है कि जैसे इंडिया में भी था वैसे वहां पे भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ये यस तो इंडिया और यहाँ पे एक आपकी बुक में 2 पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, एक पेंटिंग जो है वो इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड का प्रिंट है वहां पे मॉरिस कॉटन है, और दूसरी कलमकारी प्रिंट है। ठीक है, ये दोनों प्रिंट्स अलग अलग कंट्रीज के हैं लेकिन जो इसमें ब्लू कलर यूज हुआ है वो सेम है। ठीक है, तो फिर अब बात हम कर रहे थे कि डिमांड फॉर इंडिगो की डिमांड क्यों, इंडिगो की ही डिमांड क्यों थी, इंडियन इंडिगो की। पहला तो हमने रीजन इसमें कर लिया। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन हो गया कि जो इंडिया का ये जो इंडिगो कलर था ये रिच ब्लू कलर था। ठीक है, फर्स्ट तो ये रीजन हो गया जो हमने वाई के लिए रीजन हो गया फर्स्ट कि रिच कलर, जो इंडियन इंडिगो का था उसका रिच कलर था। दूसरा ये मोस्टली ट्रॉपिक्स में होती थी, ट्रॉपिक्स रीजन में होती थी, तो इंडिया ट्रॉपिकल रीजन है तो इसलिए यहाँ पे भी ये जो हम क्रॉप थे ये ग्रो करते थे। ठीक है, तो ये हम सेकंड रीजन ये हो गया। उसके बाद थर्ड रीजन की यूरोप में भी वुड की प्रोडक्शन तो हो रही है ना, वुड की प्रोडक्शन हो रही है यहाँ, लेकिन जो वहाँ की कंपनीज है वो इंडियन इंडिगो की डिमांड कर रही हैं। तो जो यूरोपियन वहां पे प्लांटर्स थे, ठीक है, जो यूरोपियन वुड प्रोड्यूसर थे, एक जो यूरोपियन वुड प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को डिमांड किया कि जो इंडिया से इंडिगो आ रही है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। ठीक है, कि मतलब बाकी और भी, सिर्फ इंडिया में नहीं थी, उस टाइम पर अमेरिका में भी बन रही थी, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, ठीक है, वो भी ब्रिटेन की, जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, वैसे अमेरिका और वहां पे भी गए थे, तो वहां से भी वो इंडिगो अपने कंट्री में लेके आ रहे थे। तो यूरोपियन ने प्रोड्यूसर्स जो थे, जो वुड को बना रहे थे, ठीक है, वो कह रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि उसके ऊपर बैन कर दें। किसको बैन कर दें? कि जो इंपोर्ट हो रहा है, इंडिगो का इंपोर्ट हो रहा है, उसको बैन कर दिया जाए। ठीक है, वो बैन करवाना चाहते थे, लेकिन जो कपड़ा बनाने वाले थे, क्लोथ प्रोड्यूसर थे, उनको इंडिगो प्रिंट अच्छा लगता था, उनको वुड का कलर, जो वुड था उसका कलर पेल और डल लगता था, वो चाहते थे कि हम इंडिगो मंगवाएं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो क्लोथ प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जो क्लोथ प्रोड्यूसर हैं वो कहते थे, वो डिमांड, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि जो इंडिगो इंपोर्ट के ऊपर आपने बैन लगाया है उसको हटा दिया जाए, उसको थोड़ा, और उन्होंने किया गवर्नमेंट से कि इस डिमांड बैन को रिलैक्स कर दिया जाए। ठीक है, कि जो भी उन्होंने उस पे बैन लगाया है उसको रिलैक्स किया जाए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो अब इसमें एक साथ और, अब ये तो चीजें चल रही थी, ठीक है, जो कंपनी कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी वो इंडियन इंडिगो की डिमांड कर रही थी, जो वहां पर वुड ग्रो करने वाले थे वो कह रहे थे कि हमने इंडिगो को यहाँ पे, क्योंकि उनको लॉस होगा, उनका वुड कोई परचेज नहीं करेगा, ये जो वुड था इसको तो वो परचेज ही नहीं करेंगे, अगर इंडिगो मंगाएंगे तो उनको नुकसान होगा। वो कह रहे थे बैन करो, ये कह रहे थे कि उसको रिलैक्स करो। ठीक है, इसी सिचुएशन में साथ साथ में जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज से वहां पे इंडिगो आ रही थी, वो उस पे वो रुक गई। क्यों रुक गई? ठीक है, वो जो उनका सप्लाई थी वेस्ट इंडिया और अमेरिका से, ठीक है, ये जो सप्लाईज उनकी थी वेस्ट इंडीज और अमेरिका से, वो उनकी सप्लाईज बंद हो गई बिल्कुल, क्योंकि पहले तो इंडिगो सिर्फ बाकी कंट्रीज से भी आ रही थी, इन सभी कंट्रीज से आ रही थी,
तो ये जो सप्लाई जब उनकी बंद हो गई तो अब ब्रिटिशर्स और कहाँ पे उनका कंट्रोल था। एक तो चलो यहाँ से वो इंडिगो मंगा रहे थे, अब उसके पास कौन सी ऑप्शन बच गई, इंडिया। उनके पास अब ऑप्शन इंडिया बच गई। यस, कैरिबियन आइलैंड्स, वहां पे भी इंडिगो उस टाइम पर हो रही थी। ठीक है, तो अब ये सप्लाई, इनकी सप्लाई भी बंद हो गई। अब उनके पास ऑप्शन क्या बची, इंडिगो इंडिया की। ठीक है, तो ये इंडियन, इसलिए जो ब्रिटेन थे दे टर्न्स टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, जो लास्ट इसका पॉइंट क्या हो गया कि जो ब्रिटेन, अब ब्रिटेन के पास क्या ऑप्शन आ गई, दे टर्न्स टू इंडिया। अब वो इंडिया में आ गए। क्लियर, अब वो ब्रिटेन जो थे वो इंडिया में आ गए, क्योंकि ये सारे रीजंस थे, डिफरेंट रीजन, कि जो इंडिगो थी उनको चाहिए थी। ठीक है, जो वहां की वोट थी उसको वो प्रेफर नहीं करते थे। पहले तो उनके पास सप्लाईज आ रही थी दूसरे कंट्री से, लेकिन वहां कंट्री से भी सप्लाई आनी बंद हो गई। ठीक है, वो डिफरेंट रीजंस है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वहां से सप्लाई आनी बंद हो गई, तो उसके बाद अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बची और वो थी इंडिया। ठीक है, अब वो इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के कल्टीवेटर्स थे उनको फोर्स किया। ठीक है, यहाँ के कल्टीवेटर्स को उन्होंने फोर्स किया कि वे इंडिगो ग्रो करें। तो इट मींस कि यहाँ धीरे धीरे उन्होंने इतना फोर्स किया कि जो ब्रिटेन में सारा इंपोर्ट हो रहा था, ठीक है, जितना भी इंपोर्ट हो रहा था, तो स्टार्टिंग में तो पहले 1888 में, पहले तो 1788 में ये जो इंपोर्ट था ये सिर्फ 30% था, और 1810 आते आते ये इंपोर्ट 95% हो गया। मतलब सारी की सारी इंडिगो इंडिया से ही जा रही थी। क्लियर, तो इतनी, मतलब इंडिगो का जो भी उनकी डिमांड थी वो सारी इंडिया ही पूरी कर रहा था। तो इतना इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो इंडिया में इंक्रीज हो गया। अब ये तो हो गया हमारा कि वाई, डिमांड क्यों थी इंडियन इंडिगो की। ये सारे रीजंस क्लियर हो गए। क्लियर कि इंडिगो की डिमांड क्यों थी। यस, तो टुडे भी इंडिया में अभी इंडिगो प्रोड्यूस जो है वो की जाती है, लेकिन लार्जर प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, तो ये डिमांड हो गई। उसके बाद अब इंडिगो वहां पे कल्टीवेट, अब ब्रिटेन यहाँ पे तो आ गए, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले वैसे ही बड़ी क्रॉप्स ग्रो की जा रही थी, अब उनका कंट्रोल भी था, लैंड रेवेन्यू भी वो कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो लैंड रेवेन्यू भी उनके पास कंट्रोल है फार्मर्स के ऊपर। पहले तो वो फार्मर्स को बोलेंगे कि हाँ इंडिगो उगाओ। ठीक है, अगर कोई इंडिगो नहीं उगाता तो उसको वो फोर्स करते थे। अब इंडिगो को फोर्स क्यों करना पड़ता था, क्योंकि बिकॉज इंडिगो वाज सच क्रॉप दैट इट द fertility of the soil loses when we grow indigo. ठीक है, the fertility of the soil is fertile. If the soil is fertile, only then our production will be more. हमारा प्रोडक्शन तो तभी ज्यादा होगा अगर सॉइल फर्टाइल है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए जो कल्टीवेटर्स थे कई बार हेजिटेट करते थे कि हम इंडिगो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट उस टाइम पर लेकिन फिर वो उन्हें फोर्स करते थे कि नहीं आप इंडिगो प्रोड्यूस करो। अब वो इंडिगो प्रोड्यूस कैसे की जाती थी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा? ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर? क्लियर, ओके। सो नाउ वी विल मूव दैट व्हाई हाउ इंडिगो वाज कल्टीवेटेड, कि इंडिगो जो थी वो कल्टीवेट कैसे की जाती थी। तो इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए जो एक तो यहाँ पे इतनी सारी इंडिगो इंडिया के कंपनी ऑफिशियल्स ने उनको फोर्स करना शुरू कर दिया। यूरोपियन इंडस्ट्रीज में उनकी डिमांड जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। तो बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स वो उन्होंने भी दे ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग द प्लांटर्स ऑफ इंडिगो। ठीक है, ऊपर से स्कॉटलैंड और वहां इंग्लैंड से और भी जो पर्सन थे वो भी इंडिया, बहुत सारे न्यू प्लांटर्स, ठीक है, न्यू प्लांटर्स जो थे जो कि इंडिगो प्लांटेशन करना चाहते थे तो वो भी इंडिया में आ गए। ठीक है, सो दे ऑल्सो केम इन इंडिया। तो इट मीन्स कि जो इंडिगो प्रोडक्शन था इंडिया में वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। बहुत सारे जो प्लांटर्स थे, स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन, वो भी इंडिया में आ गए। अब जो प्रोडक्शन थी इंडिगो की वो दो तरह से हो रही थी। ठीक है, इंडिगो प्रोडक्शन
फर्स्ट ये थिंग क्लियर है कि डिफरेंट प्लांटर्स, अब उसके लिए प्लांटर्स, बहुत तरह के प्लांटर्स थे, ठीक है, डिफरेंट प्लांटर्स, स्कॉट्समैन, ब्रिटिश कंपनी के ऑफिशियल्स, ठीक है, कुछ इंग्लिशमैन भी आ गए, कुछ और डिफरेंट और भी कई प्लांटर्स जो थे जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने आ गए, क्योंकि पहले तो सिर्फ 30% था, लेकिन 1810 में ये 95% तक प्रोडक्शन हो गई थी, तो बहुत सारे प्लांटर्स आ गए। अब उन प्लांटर्स ने दो तरह के तरीके यूज किए इस इंडिगो की प्रोडक्शन के लिए। एक तो कल्टीवेशन थी निच कल्टीवेशन, ठीक है, और एक थी रेयोती कल्टीवेशन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे निच कल्टीवेशन के बारे में कि जो इंडिगो थी वो निच कल्टीवेशन से कैसे प्रोड्यूस की जा रही थी। तो हाउ इट वाज प्रोड्यूस। अब निच जो प्रोडक्शन थी इसमें प्लांटर्स के पास, अब सबसे पहले तो लैंड चाहिए हमें, ठीक है, लैंड चाहिए, तो अब इसमें भी लैंड जो थी वो प्लांटर्स की अपनी लैंड होती थी, इसकी अपनी, ठीक है, ऑन लैंड होती थी, कि चाहे हो सकता है वो उसने लैंड अपनी परचेज की है या उसने लैंड रेंट पे ली है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता था किसी भी तरह की, लेकिन जो लैंड थी वो प्लांटर की अपनी होती थी, ठीक है, वो पीजेंट की नहीं, उसने परचेज कर ली, उसने एक लैंड, he has purchased a plot of land and he has started doing the plantation of indigo there, and how he was hiring laborers, और उसके बाद वो laborers हायर करता था इसके लिए, ठीक है, लेबरर्स को हायर करता था और वो लेबरर्स फिर आगे उस इंडिगो की प्लांटेशन करते थे। लेकिन इस जो प्लांटेशन की मेथड था, इस मेथड में प्रॉब्लम थी। अब इस मेथड में प्रॉब्लम क्या थी, जितनी भी टोटल लैंड थी 25% जो इंडिगो थी वो इस तरह से प्रोड्यूस की जा रही थी, और बाकी जो इंडिगो थी वो रेयती सिस्टम के। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये निज कल्टीवेशन। अब निज कल्टीवेशन में yes, so that's why now discussing कि peasants को प्रॉफिट होता था कि नहीं होता था। अब देखो ये इसमें लैंड किसकी है, प्लांटर की है, ठीक है, वो लेबरर्स को हायर कर रहे हैं, जैसे लेबर हमने लगा ली एंड वी विल पे टू द लेबरर्स, ठीक है, तो लेबरर्स को हम हायर कर लिया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये आई कि जो प्लांटर्स थे उन्होंने एक फिक्स लैंड परचेज की हुई है, ठीक है, अब क्योंकि वो बाहर से आए हैं, उनके पास जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी थी उनका एक एरिया उन्होंने फिक्स कर लिया। अब जैसे हमने बात की कि इंडिगो प्लांटेशन में जो फर्टिलिटी है सोइल की, इट लूजेस वेरी क्विकली, ठीक है, तो द लैंड ऑन विच दे वर ग्रोइंग द इंडिगो, so it was losing its fertility or it was also having a impact on the production. इंडिगो की प्रोडक्शन पे उसका इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि फिक्स लैंड प्लॉट था। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, दूसरे यस जो उन्होंने परचेज की लैंड वो तो यहाँ जहाँ के जो जमींदार थे, ठीक है, मोस्टली तो लैंड जो जमींदार होते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स, उनसे वो परचेज कर सकते थे लैंड, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, तो उनसे वो लैंड परचेज कर लेते थे, ठीक है, और उसके लैंड परचेज करने के बाद लेबरर्स को हायर करते थे। अब लेबर्स को जब हायर करने की बात आती थी तो लेबर्स क्या होता था कि जिस टाइम पर इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए उनको लेबर चाहिए, एट द सेम टाइम द लेबर्स वर इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। उस टाइम पर राइस की भी कल्टीवेशन हो रही थी और वो पीजेंट्स अपने राइस की कल्टीवेशन में बिजी होते थे, क्योंकि राइस की कल्टीवेशन में भी एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उस जिस टाइम पर इनको लेबर की जरूरत थी उसी टाइम पर राइस कल्टीवेशन के लिए लेबरर्स की भी जरूरत थी। तो इसलिए ये जो चीजें थी, ये प्रॉब्लम्स इस निच कल्टीवेशन में आ रही थी, ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ इसमें, अब इसमें जैसे एक और प्रॉब्लम थी कि जो इसमें टूल्स यूज होते हैं, है ना, हम प्रोडक्शन करनी है, एग्रीकल्चर जमीन तो हमें चाहिए, साथ में हमें प्लव्स वगैरह भी चाहिए, ठीक है, जो कि हम कल्टीवेशन के लिए यूज करेंगे, तो उसको एक प्लांटर को इन्वेस्टमेंट उसको बहुत करनी पड़ रही थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फिर उसकी इरिगेशन के लिए सारा अरेंजमेंट करने के लिए प्लांटर्स की भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, जिससे कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जो निच कल्टीवेशन थी इसमें धीरे धीरे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो थी उनको आनी शुरू हो गई,
ठीक है, तो जो भी नए प्लांटर्स थे वो निच कल्टीवेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो वो उसको अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रिफ्यूज कर रहे थे। और जो बाकी सारा सिस्टम था, सिर्फ 25% ऑफ लैंड पे इस तरह की इंडिगो प्लांटेशन हो रही थी। अभी वो हमने ये भी डिस्कस करना है कि लोगों ने रिबेलियन भी की, ठीक है, अभी ये कंटिन्यू नहीं होती चली गई, तो अभी ये स्टार्ट ही हुई थी। उसके बाद कुछ लैंड पे रियोती सिस्टम ये भी हो रहा था। अब रियोती सिस्टम में क्या, हाउ दे वर प्लांटिंग, वर डिस्कसिंग रियोती सिस्टम। सो इन रियोती सिस्टम व्हाट दे विल डू अ एग्रीमेंट, ठीक है, वो एग्रीमेंट करते थे। एग्रीमेंट किसके साथ करते थे? प्लांटर्स, जो प्लांटर्स थे, इसमें तो वो अपनी जमीन खरीद लेते थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो जमीन थी इट वाज बिलोंगिंग टू पीजेंट ओनली। पीजेंट्स अपनी ही जमीन पे ही विल ग्रो द इंडिगो, बट ही विल डू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट विद होम? विलेज हेडमैन। जो विलेज का हेडमैन होता था, तो विलेज हेडमैन के साथ दे विल डू द एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप, ठीक है, उसके साथ कर लेते थे कि वी विल गिव यू मनी, यू विल ग्रो इंडिगो एंड देन गिव द प्रोडक्शन टू अस, ठीक है। तो इस तरह आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते थे। और ये भी उनकी एक दे डू कि दिस इज द रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू यूज 25% ऑफ योर लैंड फॉर इंडिगो, कि ये नहीं कि आप थोड़ी सी लैंड पे इंडिगो ग्रो करोगे, अपनी जितनी भी आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है तो आप उसमें से 3 या 4 बीघा जमीन पे इंडिगो ही प्लांट करोगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई होती थी, ठीक है, तो ये चीज थी। उसके बाद वो प्रोवाइड, जो प्लांटर्स थे वो प्रोवाइड करते थे सीड्स, ठीक है, सीड्स और जो ड्रिल, जो भी पीजेंट को चाहिए होती थी चीजें, और स्टार्टिंग में लोन भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है, लोन भी, कि अब कल्टीवेटर्स तो पीजेंट्स खुश हो गए कि हमें स्टार्टिंग में ही पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी तरफ से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, वी आर ग्रोइंग इंडिगो, हमें पैसे मिल रहे हैं, तो दे वर ग्रोइंग इंडिगो। अब उन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स इस रियोती सिस्टम में भी इंडिगो ग्रो करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि पीजेंट्स ने बहुत इजीली लोन तो ले लिया, ठीक है, लोन लेने के बाद ग्रो करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने क्रॉप्स को उनकी पूरी क्रॉप रेडी हो गई, क्रॉप को उन्होंने बेचा, दैट बट दे प्लांटर्स दे परचेज दैट क्रॉप एट ए वेरी लो प्राइस, उनको बहुत लो प्राइस दिया उसका प्राइस, चाहे वो यूरोप जाके ज्यादा में बेचेंगे, लेकिन उनको तो उन्होंने बहुत कम प्राइस दिया। लोन उन्होंने आगे लिया हुआ पीजेंट्स ने वो प्लांटर का लोन भी देना है, तो अब फसल का रेट भी उनको कम मिला, तो इट मींस प्लांटर ने तो फायदा ले लिया बट पीजेंट्स को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें प्लांटर्स को प्रॉब्लम आ रही थी निज सिस्टम में, और रियोती सिस्टम में जो पीजेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनका जो उन्होंने लोन लिया है वो भी उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, ना तो उनका लोन पूरा जा पा रहा था और ना ही उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये दोनों चीजें हो रही थी, जिसके बाद कि लास्ट में जो उन्होंने रिबेलियन करी इन कंपनी ऑफिशियल्स के खिलाफ, प्लांटर्स के खिलाफ, कि वी विल नॉट ग्रो इंडिगो फ्रॉम नाउ, कि हम आपसे इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वाज, हाउ इट टुक प्लेस, we will discuss it tomorrow in detail कि कैसे ये सब चीजें हुई, ठीक है, and side by side the question answer of this chapter also, ठीक है। so go through all the points in your books, ठीक है, find out the answers of questions, if there is any doubt then we will also discuss. So from the all points that we have discussed now, if there is any doubt to please write in chat box. So as we have discussed, ki peasants were suffering a lot in this riyothi system. There was no profit to them. They have to pay the loan to the planters that they have took, and they have also to return, and they were selling their crops at very low price. Why? Because planters were not giving their money, more money to them. They were giving very less money to the crops. So now slowly they were not preferring to grow indigo. So all the peasants, they have together decided that they will not grow indigo on their land.
And then in 1859, this revolt was being started. So we will discuss it tomorrow, how this was in detail it started. So please go through the chapter, all the points that we have discussed, and find out the answers. Okay, then thank you everyone, take care.